Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the bones of the axial and appendicular skeleton, as well as we had a look upon the different type of joints that are present in our body. Joints where the interacting sites, or you can say the articulating sites between the two bones, and they are composed of different tissues. Fibrous tissues or cartilages will be present at the places of the joints. Some of the joints like ball and socket joint, it provides a very free movable joints, right? Freely movable means it provides more flexibility, more working, right? Whereas there are some types of joints which are immovable joints. For example, the joints present between the bones of our skull, right? Even between our teeth and mandibles, such immovable joints were present. We have also talked about some of the joints which provide slight movements, and these joints were known as the cartilaginous joints. The cartilaginous joints or slightly movable joints. ये ऐसे joints थे जहाँ पे due to the compression of the fibrous tissue some type of movement was possible. Here we have looked upon the example, that is pubic symphysis, as well as we have looked upon the another example which was the intervertebral disc. So in short, different types of joints play a very important role in various types of movements. Now we are talking about the last topic from this chapter, and it is about the different disorders associated with our muscles and our skeletal system. हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड कई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं. सम ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड बट मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट्स आल्सो. So we are going to talk about such disorders. The very first disorder that we are going to talk about is the disorder arthritis. So first we will mention arthritis. The simple meaning of arthritis is inflammation of the joints. Arthritis का सबसे easy meaning ये हो जाता है that there is inflammation in the joints. Inflammation मतलब swelling, ठीक है? So inflammation of joints. But this arthritis can be of several types, right? Joints में जो pain होता है वो कई reasons से हो सकता है. So here we are going to talk about some of the types of arthritis. The first type of arthritis is known as rheumatoid arthritis. The first type of arthritis is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is characterized by a condition called rheumatic fever. It is characterized by rheumatic fever. तो rheumatoid arthritis में क्या होता है कि a very common symptom of rheumatoid arthritis is having fever. वैसे तो ये डिसीज इसलिए भी होता है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द वाल्व्स ऑफ हार्ट. जब हार्ट के वाल्व्स जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते, ओपन क्लोज नहीं होते, तब ये डिसऑर्डर होता है. बट अनदर रीजन फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज दैट देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल मेम्ब्रेन जो था वो हमने पहले भी बात की है दैट वेयर इट इज लोकेटेड. जॉइंट्स के टॉपिक में हमने साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात की थी. तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब स्वेल हो जाती है तो वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करने लगता है साइनोवियल फ्लूइड का. सो इट रिजल्ट्स इनटू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड. मतलब साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, पर साथ साथ में ये एक अबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स भी रिलीज करता है, दैट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन.
is a source for the production of synovial fluid, right? synovial fluid कहाँ से बनता है? तो synovial membrane के जो secretory epithelial cells थे वही synovial fluid बनाते हैं. पर अब यहाँ पे synovial fluid तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में there is formation of abnormal granules which are known as pannus, and this abnormal granules they accumulate at the articular surface and causes erosion of articular cartilage. राइट तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी वो स्वेल हो जाती है. साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा बनने लगता है. साथ साथ में यहाँ पे एक एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स क्रिस्टल्स जैसा फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है पेनस, और ये पेनस भी साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जो कार्टिलेज है, उन पे एक्यूमुलेट हो जाती है और उनको इरोड कर देती है, मतलब रिमूव कर देती है. अब जब बीच में आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब कार्टिलेज ही नहीं है तो क्या होगा कि ये जो मूवमेंट होगा, द जॉइंट्स पे जो आर्टिकुलिंग मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट में काफी पेन हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा. सो दिस रिजल्ट्स into pain and swelling. What is going to happen? It is going to result into the pain and the swelling. So such a condition is known as rheumatoid arthritis. Next disorder की बात करते हैं. तो आर्थराइटिस में सेकेंड सबसे ज्यादा कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस. Osteoarthritis is simply inflammation of joints due to erosion of articular cartilage. कई बार क्या होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो जैसे कि स्वेलिंग हो रहा है, रूमेटॉइड मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन का और फ्लूइड बन रहा है, ऐसा ना भी होके कई बार क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे जो कार्टिलेज जो बोन्स को कवर करता है वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है या रिमूव हो जाता है. अगर कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहा है बोन्स के ऊपर, राइट, और ऐसे ही दोनों बोन्स के ऊपर कार्टिलेज है, पर कभी कभी क्या होता है कि धीरे धीरे ड्यू टू एजिंग ऑल्सो दिस कार्टिलेज गेट स्लाइटली रफ्ड ऑफ, राइट, इरोड हो जाता है कार्टिलेज, और उसी की वजह से दो बोन्स जो है उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है क्योंकि अब वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं है. So due to that reason, sometimes there is erosion of the articular cartilage and this results into pain, particularly pain in knee joint or elbows or even hip joint. Knee joint, elbows या hip joint जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होते हैं उन जगहों पे ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है. दिस इज द वेरी वेरी कॉमन रीजन फॉर द पेन, राइट. सबसे कॉमन जो रीजन है दैट इज पेन. फॉर द पेन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस. द नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस आर्थराइटिस. Now infectious arthritis can occur due to some bacteria or virus. When bacteria or virus lodges at the joints. Lodges at the joints का मतलब कि यहाँ पे joints पे आके settle हो जाते हैं through blood circulation. Through blood circulation. तो कई बार कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे ब्लड में एंटर हो चुका है और ब्लड में सर्कुलेट होते होते वो कोई पर्टिकुलर जॉइंट्स पे जाके
रह जाता है, वहीं पे रुक जाता है, तो उन केस में भी हमारे जॉइंट्स में पेन हो सकता है, एंड दैट इज इन्फेक्शियस आर्थराइटिस विच कैन बी ड्यू टू सम बैक्टीरिया और वायरस. द फोर्थ टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज गाउटी आर्थराइटिस, जिसे आप सिंपली गाउट भी बोल सकते हो. समटाइम्स गाउटी आर्थराइटिस इज सिंपली मेंशन्ड एज गाउट. गाउटी आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि व्हेन देयर इज इम्प्रॉपर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, इम्प्रॉपर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, अगर प्यूरिन्स प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स मतलब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, तो जब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इम्प्रॉपर होता है तो क्या होता है कि इसकी वजह से यूरिक एसिड accumulates at the joints, और यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, तो क्रिस्टल्स के फॉर्म का ये जो यूरिक एसिड है वो हमारे जॉइंट्स में लॉज हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, and this causes really a painful condition. Surgically, that mass of uric acid has to be removed through a small surgery, right? So this condition is also very common, and those with gouty arthritis, doctor will suggest not to have any more proteins in the diet, right? ज्यादा proteins वाला जो diet होता है उसे रिमूव करने को बोलते हैं. तो गाउटी आर्थराइटिस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब इम्प्रॉपर हो जाता है तो होता है. तो हमारे पास आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो ऑटो इम्यून डिसीज है. ऑटो इम्यून मतलब कई बार हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, मतलब कौन से सेल्स सेल्फ हैं और कौन से नॉन सेल्फ हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और इसी की वजह से वो नॉन सेल्फ सेल्स की जगह पे सेल्फ सेल्स को डैमेज कर लेते हैं, और दैट सच कंडीशन विल लीड टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीज आफ्टर दीज फोर इज myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is also an autoimmune disorder. यहां पे भी क्या होता है, it is a disorder of neuromuscular junction. Neuromuscular junction disorder. So this disorder mainly affects the neuromuscular junction. अगर आपको neuromuscular junction याद हो तो what was it? तो जो nerve cell है जहाँ पे end होता है और जहाँ से muscle start होता है, इन दोनों के बीच का जो junction है इसे neuromuscular junction कहते हैं. और कई बार क्या होता है कि ये जो neuromuscular junction से जब information properly relay नहीं होती तो it results into weak and fatigue muscles, right? Muscles will not be able to work properly. Muscles weak रहेंगे क्योंकि उन्हें proper time पे impulse मिल ही नहीं रहे हैं for contraction. तो contraction होने के लिए signals ही ठीक से नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से वो नहीं होगा, and therefore it results into the easy tiring up or weakening of the muscles. So such condition is called myasthenia gravis. The third disease which we are going to talk about is osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस से नाम से पता चलता है बोन्स जो होते हैं दे बिकम पोरस. इस डिसीज में क्या होने वाला है, बोन्स जो होते हैं हमारे वो पोरस हो जाते हैं, और पोरस बोन्स जो होते हैं अगर उनमें होल्स हो जाते हैं इसका मतलब कि दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, राइट. इजी फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि हमारी बोन की डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है. बोन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से बोन्स पोरस हो जाते हैं, एंड देयर इज लॉस ऑफ मेनी मिनरल्स फ्रॉम द बोन्स. लॉस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम बोन्स. नाउ द कॉज ऑफ लॉस ऑफ मिनरल्स क्यों ऐसा होता है, तो इट कैन बी ड्यू टू हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, राइट. सेक्स हार्मोन्स जैसे कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. इसके अलावा कैल्सिटोनिन
जो हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है पैराथॉर्मोन, जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ये सारे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस उसकी वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस. Hormone imbalance as well as deficiency of calcium in the body can result into making your bones porous. और bones एक बार porous हो गए, उनकी density कम हो गई, फिर वो easily break हो जाएंगे, easily fracture हो जाएंगे, even with a small injury. Right? So osteoporosis is one more such skeletal system disorder. Next we are going to talk about a disorder, tetany. Tetany is rapid contraction of muscles due to low level of calcium. So due to low level of calcium, there is spasmic contraction of our muscles, irregular muscle contraction, and that disease is called tetany. Now we are left with just one more disease, and that is muscular dystrophy. So next disease that we are going to talk about is the muscular dystrophy. Now muscular dystrophy, it is a genetic disorder and it occurs due to mutation of the gene in X chromosome. The name of the gene, that is डिस्ट्रोफिन जीन. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो किस वजह से होता है, तो कई बार क्या होता है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. हमारा जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म दोनों होता है. तो जो शॉर्ट आर्म होता है एक्स क्रोमोसोम का, उसके एक जीन में, कौन सा जीन, डिस्ट्रोफिन जीन जो है उसमें डिफेक्ट हो जाता है. डिफेक्ट हो जाना मतलब म्यूटेट हो जाना. अब डिफेक्ट हो जाने की वजह से, म्यूटेशन हमने लिखा है, इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द gene, right? So this gene is responsible for release of the protein called, ये जीन से बनता है एक प्रोटीन, क्योंकि जीन्स मतलब डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन. ऐसी सीक्वेंस होती है हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए. तो यहाँ पे एक प्रोटीन जो है वो नहीं बन रहा, जिसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन. सो लैक ऑफ, that is this mutation in the gene results into lack of synthesis of the protein which is called dystrophin. अब ये जो डिस्ट्रोफिन है, that is responsible for nerve signal for the calcium storage in the muscle cell. हमारे जो मसल सेल्स हैं उनमें कैल्शियम स्टोर होता है, पर ये कैल्शियम को टाइम टू टाइम रिलीज करना पड़ता है, तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही नहीं बन रहा तो कैल्शियम का स्टोरेज तो हो रहा है पर कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा. कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट अकर. सो नो मसल कॉन्ट्रैक्शन. मोरओवर, abnormal level of calcium, abnormal level of calcium result into damage of actin and myosin. अगर एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब यही डैमेज हो जाएंगे तो मसल्स जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला. मसल्स विल बिकम वीक एंड फैटिग. द डिसीज इज सो मच सीवियर दैट अप टू एन एज ऑफ 12 years द child will be suffering from such problems of muscle contraction
and also it can lead to death of the person, right? So mental impairment, heart troubles, these all are the things which are associated with the muscular dystrophy. वापस एक बार सुन लीजिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होने की वजह से होता है, जो एकदम ही रैंडम है, एब्रप्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से एक प्रोटीन नहीं बन रहा जिसे कहते हैं डिस्ट्रोफिन. ये प्रोटीन सिग्नलिंग के लिए जरूरी है कि नर्व सिग्नल मिले मसल सेल को तो कैल्शियम रिलीज हो, पर जब ये प्रोटीन ही नहीं है तो कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा. कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा तो मसल सेल में कैल्शियम का अबनॉर्मल लेवल है, और इस एबनॉर्मल लेवल की वजह से एक्टिन और मायोसिन जैसे प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाते हैं. जब वही डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एन एंजाइम, और इस एंजाइम की वजह से एक्टिन और मायोसिन डैमेज हो जाते हैं. डैमेज हो जाने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, वीकनिंग, फैटिग, टायर्डनेस विल बी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इनिशियली. Later on, there will be trouble with the heart, there will be trouble with the mental irregularities, right? Mental impairment हो जाएगा, और जिसकी वजह से the person can also die up to an age of 20 years. So such severe condition is muscular dystrophy. Next, after muscular dystrophy, I would like to talk about one more disease, that is osteomalacia, which is also known as rickets. ये rickets जो होता है, it occurs in childhood, मतलब छोटे होते हैं तभी से ये disease disorder देखने को मिलता है. So it occurs in childhood and it is mainly due to lack of calcium and phosphorus in the body. So body में, bones में जब कैल्शियम और फास्फोरस पहले से लैकिंग होता है, इसीलिए रिकेट्स होता है. और उसमें जो फीट्स होते हैं, जो नी से बेंड होते हैं, वो अलग से बेंड होते हैं, एंड देयरफॉर दे हैव वॉकिंग इम्पेयरमेंट सिंस चाइल्डहुड ओनली. ओके, वॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाता इनमें जिनको रिकेट्स होता है. ऑल्सो इट इज सेड टू बी लैक ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी अगर कम है तो भी रिकेट्स जो है, that is a very common disorder. So that was all about this chapter with all the disorders. In the next class we will begin with the new chapter.